fucking success. PMC helmet. काय झाड आहे रे बेंचो ते सगळं PMC. ब्रेक फ्लूइड लागून सगळं करोड झालं जाम. टी-शर्ट दोनों टी-शर्ट धुलने को गए मैं हर रोज पहन. वेलकम टू अफ्रीका ट्विन हेरन. There's an Africa twin over here. There's another Africa twin. There's another Africa twin. And there's another Africa twin. What songs does Bam Bam listen to? Red Hot Chili Peppers. Oh Lord. All Alright. time favorite. Next. British rock में कुछ अच्छा बताओ. Top song. Stone Roses. All right. 3. हमेशा थर्ड पर अटक जाते हो. क्या बोलते इधर इट्स अ टॉस अप बिटवीन Rammstein and White Zombie. What is the most stupidest customer you have ever come across? What was their demand? Well, I wouldn't remember because I really get rid of stupid customers really fast. I'm not kind to them. What do you do? I am the stupid customer. भैया भाई ये क्यों bullet लिया pencil बड़ा बना दो बाइक? भैया. तुम्हारे से नहीं होने वाला ये बाइक का. It's too expensive man. I mean like you know, तुम लोगे ये बाइक पे उसका टपरी मैकेनिक से काम करोगे फिर तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगा. क्यों तुमने चुना है ये? पैंचो एक्टिवा ले लो, हीरो होंडा ले लो, सुखी रहोगे ज़िंदगी भर. Worst बाइक ever हो. दिमाग खराब हो गया. भैंचोद कभी नहीं करने वाला ये काम. Benelli, no doubt whatsoever. Hey, I'm Rahul. This is Bam Bam Bikes, and this is Tickles. So if you're wondering what I do here, I try to make enough money to feed this greedy fuck. Disclaimer. This is not serious, okay? We believe in smoke. सब नंगे हो जाते हैं. When it's not coming from a bike, it should come from us. Best जुगाड़. Oh yeah, of late, yeah, that is. That's the Sikkim style. Could you Of tell late, people that about is- the Sikkim I'll style? show you, na. Let's go. This is So this was my OEM Africa Dinga stand, which I bashed up pretty good because I reinforced it. I put one piece of aluminium and welded it. Okay, so the story behind this, why this is bent like this, is because my bike is taller than the stock Africa Twins. why? Like you will. Because I just wanted a taller bike. Achha, okay. You know, dirt kide and all that shit. Because but like touring में stance बनता है tall bike. Per boss. Okay, so in India, the post 2020 Africa Twins are shorter by 40 mm Oh, okay. from this. Okay, so the GC on this is 250. The GC on the new one is 210. Okay, but this still leans better. So yeah, so I was just entering the final ascent to Gangtok. Entry पे ही ऐसा छोटा सा bridge है. Were you going by some highway or like? There's only one road to go actually. ज़्यादा road नहीं है. The main जो road है Gangtok जाने का. Where were you driving from? From Pune. अच्छा, you were driving from Pune only. Yeah. Pune to Pune किया पूरा. तो okay. Before that, this is bent because my bike is taller. So that's why you see all these blocks have been welded. Lord. So when it used to touch the ground and I used to get on the bike, so the whole bike used to leave the ground. ऐसा पीछे का पहिया ऐसा उठ जाता था हवा में. Because the bike is tall. हाँ, तो ये ऐसा झुक गया है तो वो ऐसा उठता था ऐसा. तो उठ के ना ये ऐसा बेंड हो गया पूरा. And when I was coming back from Spiti, I think I was in Simla. This was in This was 3 years ago. 3 years ago. 27, Yeah. 2022. So this thing bent to such an extent, ये bend हो गया, ये ऐसा हो गया. तो एक जगह पे शिमला के घाट में मैंने ऐसा लगाया गाड़ी और ऐसा खड़ा था, वेटिंग फॉर माई बडी टू कम. और मैं गाड़ी लगा के ऐसा उसको राह देख रहा था. गाड़ी को ऐसा साइड स्टैंड पे लगा दिया. साइड स्टैंड पे टिका ही नहीं. मेरे को पता नहीं, धाड़ मेरे को लेके गिर गया. एंड विथ ऑल द फकिंग सामान विमान बंधा हुआ था On you. हाँ. और आई वाज स्पीड. अरे
बेंच चला ले इधर तो ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है. So that whole thing fell on us. ऊपर एक पट्टी डाल के वेल्ड किया. हाँ, तो this thing was like that. The bike ऐसा पूरा हवा में था. हाँ. पहिया भी ऐसे पूरा हवा में गया था और this thing was like that. हाँ. Okay, because it was bent like that. हाँ. So फिर वो he tried to pick up the bike, he couldn't. Okay, that was the time मेरा पहाड़ी लोगों का रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया. तो एक बंदा उधर वो जो होटल जो खाना खाने के लिए हम लोग एक्चुअली रुके थे, वो एक बंदा खाना खाते हुए दिखा हम लोग को. एक तो बाइक के नीचे ऐसे पड़ा हुआ है और एक साला उठा रहा है और उसको जम रहा नहीं है. तो ऐसा खाना मीना छोड़ के आ गया. क्या हो गया तो बोला भाई गाड़ी उठ रहा नहीं है. सिंगल हैंडेड यार, इतना सा था वो. He was like this guy man. ऐसा सब करके उसने उठाया बाइक. I was like fuck amazing man. I was like साला तुम खाते क्या हो. हाँ, तो वो उठाया. तब से from Simla to Pune I couldn't use my side stand. Okay, so our modus operandi was I used to stop, wait for my friend to come. Once he came and parked his bike, then I used to get off the bike. Then both of us used to put it on the main stand. So that was a very painful experience. हाँ, क्योंकि मेरे को फोटो निकालने का है, मेरे को मुतने का है, तो भी आई हैड टू डू दैट. साइड स्टैंड ही नहीं है, क्या करेगा. तो दिस टाइम व्हेन आई रीच दैट पार्ट ऑफ गैंगटॉक, so then I reinforced this, I straightened it, I reinforced it. वो सब किया मैंने. क्यों नहीं लिया is the question. Relax. हाँ तो ठीक है. तो गैंगटॉक में I came on that bridge. The same friend, he parked in front of me, I parked behind him. And while parking, मैंने जगह देखा था अच्छा साइड स्टैंड लगाने का. पर by the time I actually put my side stand down, वो थोड़ा सा आगे गया था और उधर वो पानी जाने के लिए इतना सा वो पाइप के लिए होल था. तो बराबर उसके अंदर गया ये. तो I parked it and I got down, वो पूरा अंदर चला गया और वापस से I was pinned under the bike और ठक करके टूट गया. Okay, and I was again pinned under the bike. और वो actually he had gone in front, he walked in front to take a picture of us on the bridge. और वो साला का फ्रेम में अरे गया किधर फ्रेम में. तो ऐसा होता है. अरे भैंचो तो बोला अरे लौड़े उधर मत, इधर बाइक उठा. पहले मेरे पैर पे गिराया तो fucking luckily for good gear, I've always been saved by good gear. 2-3 बार मेरा पैर गंदे तरह से टूटा लगा. इधर पेमेंट है. हाँ, मतलब ये हाइट पे there was a pavement footpath this tall, और my foot was ऐसा footpath था, my foot was like this and the bike had fallen on my foot like that. This part near my shin was stuck between the footpath and the bike. वो पूरा 300 किलो का वजन. And it was hurting bad man. दुख रहा था. मेरा भोसड़ी के वो फोन फेंक दे और इधर आप पहला उठा. तो उससे वापस उठ नहीं रहा था. तो जाते हुए वो गैंगटॉक के 2 लड़के थे, उनको इधर सबने उठाया गाड़ी वापस मेन स्टैंड पे लगाया और देखा अरे स्टैंड ऐसे टूट गया. तो मैंने ऐसे स्टैंड रखा तो उसने बहुत गाली दिया ये लोग, चूतिया है तू ऐसा वैसा. उसके पहले मैंने रिम बेंड किया था, अभी स्टैंड बेंड किया. तो आई कॉट ऑल काइंड्स ऑफ फ्लैक कि अगली बार तू राइड जाएगा तो पीछे तेरे एक रिम और एक साइड स्टैंड बांध ले. तो इट्स द सेकंड टाइम बोथ दिस थिंग्स आर हैपनिंग. तो then all these images are flashing. अभी तो राइड चालू है. सिक्किम अभी I have to cover the whole of Sikkim, do whatever riding in Sikkim, come down, cross Assam, go to Arunachal, do all the fucking sightseeing whatever there, come down and ride back to Pune. और ये सब में साइड स्टैंड मेरे पास नहीं है, हो ही नहीं सकता है. मेरा राइड का पूरा मजा I am fucked man. तो मेरे को ऐसा फुल डिप्रेशन में जा रहा था. I was getting fucked in the head. मैं बोला ये क्या चीज़ है, बिना साइड स्टैंड का मैं नहीं करने वाला है. मेरे को कहीं भी बेंच मेरे को रुक के सिगरेट पीने का है, मुँह देने का है, तो तुम लोग के लिए रुकूँ मैं, हो ही नहीं सकता. एंड उसमें मेरा तीसरा जो राइडर था वो तो दिखता ही नहीं था. ही इज ऑलवेज लाइक 100 किलोमीटर अहेड ऑफ अस. Okay, and me and this guy were together, but I don't want to wait for him every time, man. So it was very ऐसा traumatic experience. तो तब भी मैं ऑलरेडी दिमाग में ठान लिया अभी गैंगटॉक में जाके रुकेंगे तो मैं एल्यूमिनियम वेल्डर ढूंढने का. मैं उसके सब पार्ट्स ऐसे लोकेट किए, वो अच्छे से रखे मेरे सैडल बैग में. बोला इसको वेल्डिंग कराएगा मैं ले जाके. तो गैंगटॉक पहुंचे. मैं बोला बॉस 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे ये काम करने के लिए. तब तक ये बंदे ने मेरा रिम है ना जो बेंड था
तो बैंड निकाल के ट्यूब डाला था उसमें, बट ही सेड फक दैट मैन, आई विल गेट अ रिम। तो मुंबई से एयरलिफ्ट करके 24 आवर्स में उसने मुंबई से गैंगटॉक रिम लाया मेरे लिए, विच ऑल्सो आई फिक्स्ड इन द सेम डे। खड़े खड़े मैंने चेंज कर दिया रिम, और फिर साइड स्टैंड के लिए मैं घूमा पूरे गैंगटॉक में एल्यूमिनियम वेल्डिंग ढूंढने को, एल्यूमिनियम का स्टैंड है। तो दो तीन फॉल्स है, लॉट ऑफ बाइक शॉप्स लाइक मैकेनिक्स, कार वर्कशॉप्स, पर एक भी एल्यूमिनियम वेल्डिंग नहीं। फिर एक मैकेनिक काफी फेमस था, वो क्या उसका नाम था, सम क्रिश्चियन नेम आई फॉरगॉट। उसने बोला बॉस तुमको पूरे गैंगटॉक में एल्यूमिनियम वेल्डिंग नहीं मिलने वाला है। तो मैं बोला फक, क्या करने का, बोला फक इट, अपन साइड स्टैंड बनाएंगे। हाँ, अच्छा आई एम नॉट राइडिंग द साइड स्टैंड, फक दिस मैन, तो विल मेक अ साइड स्टैंड। तो आई डिड सम राउंड्स, आई फाउंड वन वेल्डर जहाँ पे 2-3 वेल्डर बच्चे लोग थे। डिडंट लुक लाइक दैट मच वर्क। तो मैं उधर गया, मैं बोला भाई ये वेल्डिंग करेगा, बोला ए भाई ये बाइक को हम लोग वेल्डिंग नहीं करेंगे। तो मैं बोला बाइक को वेल्डिंग नहीं करने का है, मैं जो बोलता हूँ गाड़ी बाइक को नहीं करने का है, बाद में बाइक पे लगाएगा, मैं इसको बनाने का है, तुम्हारे पास जितना स्क्रैप मेटल है ना उसमें से ही बनाएगा ये, ओके। तो बोला ठीक है। तो फिर उसने वो स्क्रैप निकाला, पाइप निकाला, ये वो। तो देन तो व्हाट आई डिड वाज, पहले मैं गया एक, आई एक्चुअली डिड, ओके, एक बीच में का पार्ट था, आई गैंगटॉक का एक मेन पार्किंग था, उसमें मैंने पूरा चक्कर मारा। I saw one ADV 390 there. I saw Himalayan. I was checking out इसका stand 1-to-1 swap हो जाएगा क्या? Okay. तो I all negative results, नहीं होने वाला है। तो मैं बोला fuck this is also dead end. फिर I went to one ऐसा साइडी मैकेनिक था, उसके बाद 1-2 एक्सपल्स खड़ी थी, वो पहाड़ी एरिया में ज़्यादा रहते हैं एक्सपल्स। तो मैं बोला यार कोई साइड स्टैंड तेरे पास पड़ा हुआ है क्या? तो बोलता हाँ ये एक्सपल्स का पड़ा हुआ है, वो थोड़ा टूट गया, खराब है वगैरह। तो दे मेरे को। बोला कितना? बोला 100 रुपये ले। तो ऐसा टूटा हुआ एक स्टैंड था, इधर से टूटा हुआ था, तो स्टैंड ले लिया उससे मैंने। तो तब तक आई ऑलरेडी न्यू व्हाट टू डू। गया वेल्डर के पास, बोला पट्टी निकाल, ऐसा एग्जैक्ट ये मेजरमेंट में, आई हैड ऑल द पीसेस ना, तो मैंने बोला एग्जैक्ट ये मेजरमेंट में ऐसा बेंड करके पट्टी लगा, इसको वेल्ड कर, एक्सपल्स के स्टैंड को बीच में से काट, उसको पाइप डाल के लंबा कर, और नीचे ये एक तेरे शीट मेटल में से एक स्क्वायर काट और ऐसे लगा। फिर मैंने उसको बोला वो ऐसा एक बोल्ट टाइप ले और इधर वेल्ड कर दे। वो सब मेजरमेंट्स आई फॉलोड दिस, एंड आई थिंक इट टुक 2.5 hours टू डू द टोटल थिंग। वो लगा भी करके पूरा स्प्रिंग लगाया, आई डिस्कनेक्टेड द साइड स्टैंड सेंसर, उसको बांध दिया साइड में, और आई वॉज बैक विद द साइड स्टैंड। तो दिस आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड जुगाड़। And it works pretty well, huh? It worked until last week, right? Last week was when It's still working. Why did you get rid of it? Because I got a adjustable stand. I asked my friend from Finland to get it. तो see देख ये वेल्डिंग है, ये पता नहीं मैं जो किधर बम बैठा है, वेल्डिंग क्रैक हुआ, तो मेरे को वापस से वो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट सेम शिट। But again, coming to the same question, why did you not buy a new stand for instead of that? अगर वो bend हो चुका था तो because I am not one of those people who will do the same thing again and again. And I just wanted to try something different. I wanted no see okay there's a very logical reason also. ये stock stand है, इसको मेरे को बिग फुट लगाना पड़ा, बिग फुट को नीचे मेरे को एक एल्यूमिनियम 15 mm का मेरे को वेल्ड करना पड़ा। Okay, so first get a side stand, then put the big foot, then cut the plate and then weld the plate. इसमें इतने steps है। तो I said why not I get a adjustable side stand पहले से ही। तो you get adjustable side stands जो ऐसे होल रहते हैं notches उसमें, so you can adjust height adjustable for taller bikes, shorter bikes, Africa twin only. तो I said I'll get that. तो मैंने वो लिया, फिर मैं 4 स्टेप का 1 स्टेप किया तो अच्छा ही है ना। fair enough. हाँ, so I got that. एंड या फिर चेंज कर दिया मैंने। देखना है क्या है, इज लाइक अ फकिंग वेपन मैन। वो ऐसे केवमैन लोग कहने का ऐसे हो हड्डी बिड्डी लेके ऐसे वो थाई बोन लेके ऐसे क्लबिंग करते हैं। हाँ, ज्ञान which I'm going to झाड़ू in this is nobody has a monopoly on logic and sense. Everybody has a different kind of logic and sense. Okay, so if it makes sense to you, it works for you, fucking do it, man. Something spotted, opinion rejected.
Do you listen to Latin? Very little, but ऐसा I don't seek it out. इसके बाद तो बैड बनी उतना नहीं है सुनाएंगे, मेरा ऐसा. बैड बनी नको बिठा के बैड बनी सुनाएंगे. नको है. ये प्यारा है यार. मैं कोई नहीं सुनता. आई लाइक DTM उसका. इट्स लाइक देसी म्यूजिक बट थोड़ा अलग टैंगो. मैंने ये देख रहा था, लोकेशन के लिए देख रहा था बैम बैम बाइक्स. उसको पता है सिर्फ एक 1 स्टार रिव्यू है, कोई तो RC390 वाले. बेंचो वो काम मैंने किया भी नहीं है उसका. वो बाइक इधर आया भी नहीं था, पता है क्या? आई डिडंट इवन वर्क ऑन दैट बाइक. बेंचो में पहचानना भी नहीं है बंदे को. And firstly, so I have literally in my many years here, I might have worked on 10 KTM, and out of that 9 belong to like close friends who have a second bike as a KTM. So करना, हाँ? एक very bad experience and very bad guidance and not satisfying tigs and many more things. इसको और भोसड़ी के पहले इंग्लिश सीख. I got very bad experience from your फिर डॉट about my RC. about लिखता. उसमें भी लाइक करके रखा है. हाँ, I mean like क्या गांजा पी के कर रहा था क्या? I mean like गांजड़ी ही रहेगा ये.